নমস্কার, নর্থ ইস্ট নিউজ প্রাইম টাইমে আপনাদের স্বাগত জানাই। মণিভূষণ চৌধুরী। দীর্ঘদিন আপনারা একটি শব্দ শুনেছেন, নর্থ ইস্ট নিউজ বাংলা। পাশে আছেন ব্যুরো প্রধান শ্রীবাস দাস, নর্থ ইস্ট নিউজ বাংলার। কিন্তু আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছি সবার সহযোগিতায়, এবং এমনভাবে আমরা এগিয়ে চলেছি প্রাচীনকে সঙ্গে নিয়েই। এগিয়ে চলা মানে এ নয় যে আমরা পুরনো দিনকে ভুলে গেছি। নর্থ ইস্ট নিউজ হিন্দি শুরু হচ্ছে আজ ছট পূজার দিন থেকেই, এবং ছট পূজা আমরা সবাই, প্রতিজন ভারতীয় এবং সমস্ত বিশ্বে অনেকেই তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। নর্থ ইস্ট নিউজ বাংলা আজ সবার মুখে মুখে। যারা কাজ করছেন এখানে সবাই আছেন। ডান দিক থেকে আছেন মাম্পি চৌধুরী, উনি আমাদের অফিসে ডেস্ক ইনচার্জ হিসেবে কাজ করছেন এবং মাঝে মধ্যে আপনারা ওনাকে নিউজ পড়তে দেখেন। শ্রীবাস দা ফিল্ডে কাজ করছেন এবং ব্যুরো প্রধান আছেন দীপজয় চক্রবর্তী। দীপজয় যথেষ্ট পরিশ্রম করছেন এই সময় নর্থ ইস্ট নিউজ বাংলার হয়ে। এই যে রত্ন আপনারা দেখছেন, উনি 99% পিছনে থাকেন, আমার পিছনে না, পর্দার পিছনে, এবং উনি না থাকলে আমরা জিরো। অজিত পাল টুটু আমাদের কম্পিউটার ইনচার্জ, যে সমস্ত সুন্দর গ্রাফিক্স, সমস্ত সুন্দর ডিজাইন এবং খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপনা হয়, এবং মাঝে মধ্যে আমরা বলতে যে ভুল করি নিউজ রিডাররা, সব কিছু উনি ঠিক করেন। অজিত পাল। রিঙ্কু চন্দ, উনি যদি পাশে না থাকেন প্রায় সময়ই আমাদের এত সহায়তা করেন। আমাদের সাউন্ড যে বিষয়টা রিঙ্কু সামলান, এবং রিঙ্কু যদি না থাকেন আমরা সত্যিকার অর্থে চোখে শস্যফল দেখব। এবং বিশেষভাবে দুজনের কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। দীর্ঘদিন থেকে নর্থ ইস্ট নিউজ বাংলায় সাংবাদিক হিসেবে আছেন শিবকুমার। শিবকুমার অত্যন্ত পরিশ্রমী, একই সাথে উনি প্রেরণা ভারতী হিন্দি পত্রিকাতেও আছেন এবং খুব সহায়তা করেন। শিবকুমারের হাত ধরেই নর্থ ইস্ট নিউজ হিন্দি আজ ছট পূজার দিন শুরু হয়ে গেল, এবং প্রথম যে অনুষ্ঠান রয়েছে যার হাত ধরে হবে উনি হচ্ছেন আনন্দ শাস্ত্রীজি। আনন্দজির স্তোত্রপাঠের মাধ্যমে নর্থ ইস্ট নিউজ হিন্দি শুরু হবে, এবং টোটাল চ্যানেলটার যে নাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, নর্থ ইস্ট নিউজ প্রাইম টাইম। এই প্রাইম টাইমে বাংলা থাকবে, হিন্দি থাকবে, মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রাইম টাইম। কিন্তু নর্থ ইস্ট নিউজ বাংলা, নর্থ ইস্ট নিউজ হিন্দি, কালক্রমে আবারও আপনারা দেখতে পাবেন নর্থ ইস্ট নিউজ অ্যাসামিস, এবং ধীরে ধীরে নর্থ ইস্ট নিউজ ইংরেজিও শুরু হয়ে যাবে। এবং যাদের কথা না বললেই নয়, আমাদের প্রধান উপদেষ্টা অনুপ বিশ্বাস, ওনার আশীর্বাদ, সহযোগিতা, গাইডলাইন রয়েছে, এবং সর্বোপরি আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর উৎপল দাস মহাশয়, ওনার যথেষ্ট সহযোগিতা, এবং দূরে থেকে হলেও আমাদের ওয়েবসাইট ডিজাইনিং থেকে সমস্ত করে ইন্টারনেটের সমস্ত বিষয়বস্তু যিনি দেখেন কিরণ কুমার লেঙ্কা, তাদের সবার সহযোগিতা রয়েছে। এবং সবচেয়ে বড় সহযোগিতা রয়েছে আপনারা, যেসব দর্শকেরা রয়েছেন, আপনাদের সহযোগিতায় আমরা এগিয়ে চলেছি। নর্থ ইস্ট নিউজ বাংলার পর্দায় এই কথাটা বললাম, যেখানে নর্থ ইস্ট নিউজ প্রাইম টাইমের কথা বলা হয়েছে, এবং এখানেই আমরা আজকে বাংলার মাধ্যমেই নর্থ ইস্ট নিউজ হিন্দির অনুষ্ঠানটাও আমরা দেখাবো। এখন অনুষ্ঠান বিষয়ে সব কিছু বলবেন আনন্দ শাস্ত্রীজি। ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण गजतस् गजाम। नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ के हिंदी चैनल की शुरुआत आज आपके समक्ष विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के आधार पे जिसकी संरचना हुई, जिसका प्रागट्य हुआ, उस व्रत पर्व अर्थात छठी मैया के द्वारा, सविता के द्वारा करने का शुभारंभ करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं समझता हूँ
कि भगवान सूर्य साक्षात ऋग्वेद हैं, शरीर उनका यजुर्वेद, उष्मा उनकी अथर्ववेद और किरणें सामवेद कही जाती हैं। किरणें नृत्य करती हैं। सूर्य की किरणों से ही हमने नृत्य करना सीखा। सामवेद को गाया जाता है, सामवेद से ही हमने गाना सीखा, किरणों से ही हमने गाना सीखा, किरणों से ही हमने नृत्य करना सीखा। इसीलिए सामवेद को गाते हैं, ऋग्वेद को गाते हैं, यजुर्वेद को गाते हैं, अथर्ववेद को गाते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सूर्य से चलने वाली शीत ऋतु की प्रथम किरणें, ग्रीष्म ऋतु की प्रथम किरणें, शीत ऋतु की प्रथम किरणें जब कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को हमारे ब्रह्मांड के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो हमारे ब्रह्मांड का वायुमंडल अपनी प्राण वायु को उनके द्वारा संशोधित करता है, उनका शोधन करता है। और उस कचरे को, जिसे आप इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, उससे वो ओजोन परत का निर्माण करता है। लेकिन कुछ कचरा बच जाता है जो नीचे की तरफ आता है, जिससे नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और उन्हीं बीमारियों से बचाने हेतु हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, भगवान वाल्मीकि ने सर्वप्रथम ऋग्वेद के द्वारा, ऋग्वेद के माध्यम से वाल्मीकि रामायण में षष्ठी पर्व को मनाने और उसकी विधि बताने का एक प्रारंभ किया, एक प्रयास किया, जिसको आप हमारे एक बहुत अच्छे कलाकार जिनका नाम कवि मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा आप सुनेंगे। आपके समक्ष उपस्थित होते हैं हमारी एक प्रसिद्ध गायिका कवि मिश्रा जी, और उनका सहयोग करेंगे शिव कुमार जी, और ढोलक पे उनका साथ देंगे राजकुमार जी। पहाड़ छठी मैया, वो सुन के मनवा के पुकार छठी मैया। लगल महावर अलता पीपा सोहे से नृत्यकार, खिले खुल के संदल कंगन भावे नयन गजरा। लगल महावर अलता पीपा सोहे से नृत्यकार, खिले खुल के संदल कंगन भावे नयन गजरा। सुगामन फूले न समाए देखी रूप सिंगार अइली छठी मैया। सुगामन फूले न समाए देखी रूप सिंगार अइली छठी मैया। ओ सुन के मनवा के पुकार अइली छठी मैया। ले ले रूपवा के बहार अइली छठी मैया। शीतल शीतल अचरा के छैया, सुघर सुनर
के ठैया, शीतल शीतल नचरा के छैया, सुघर सुनर घरवा के ठैया, दुबस उतरस जहवा दित बिहुसत धीरे धीरे, छठ शोभेला संझिया फजीरे, छठ शोभेला संझिया फजीरे। गह गह करे घरवा अंगना, खन खन बाजे कनिया के कंगना, घटवा पावन मन के सोहाए, लचकत दौरा घाट पे जाए, जितने सोहे ताल तलैया, उतने गंगिया तीरे, छठ शोभेला संझिया फजीरे, छठ शोभेला संझिया फजीरे हो। उत्तर से हम खिले आईनी, दक्षिण से हम दियरी, पूर्व दिशा से पान कसैनी, पश्चिम से हम पियरी। उत्तर से हम खिले आईनी, दक्षिण से हम दियरी, पूर्व दिशा से पान कसैनी, पश्चिम से हम पियरी। मैना तन के अर्घ चढ़ाई, मांगी घर परिवार, आईनी छठी मैया। मैना तन के अर्घ चढ़ाई, मांगी घर परिवार, आईनी छठी मैया। ओ सुन के मनवा के पुकार, आईनी छठी मैया। ओ ले ले रुतवा के बहार, आईनी छठी मैया। ओ सुन के सेवका के पुकार, आईनी छठी मैया। ओ सुन के मनवा के पुकार, आईनी छठी मैया। जब सूर्य की किरणें ब्रह्मांड के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, हमारा वायुमंडल अपनी प्राणवायु को संशोधित करता है। वहिनी आपः प्राण वायु, ऋग्वेद कहता है। जब ओजोन का निर्माण होने के उपरांत जब बचे हुए कण पृथ्वी की तरफ आते हैं, कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को जब विश्व के जब हमारे ब्रह्मांड की सीमा में प्रवेश करते हैं, जब वे नीचे की तरफ गिरती हैं किरणें, कणें, तो उनके कण इतने विषाक्त होते हैं, इतने विषाक्त होते हैं, जिनसे नाना प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। उन्हीं बीमारियों से बचने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदों ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखने का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि 3 दिवस का यह कार्यक्रम जातस्य ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवो जन्मामृतस्य च, जो मरता है उसका जन्म होगा, जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु होगी उसका पुनर्जन्म होगा। अतः प्रातःकाल सूर्य भगवान को जल देने के उपरांत दूसरे दिन पूरा दिन निर्जला मृत्यु की तरफ जाता हुआ प्राणी जब तृतीय दिन पुनः सूर्य को जल देता है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्मामृतस्य च, तो छठ पूजा का पर्व अपने आप को पूर्ण मानता है। और उसका कारण मात्र
द्वादश राशियों में भ्रमण करता हुआ चंद्रमा द्वादश राशियों में भ्रमण करता हुआ सूर्य, एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति की ओर जाता हुआ चय करता हुआ सूर्य ही है, जिसे आने वाले गीत में आप सुनेंगे। इसकी प्रस्तुति को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं नेवल जी, मम्पी चौधरी जी और हमारे राजकुमार जी। कबहू ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार। तोहरे भरोसे हमनी के छूटी नहीं छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार। गोदिया भराइल छठी मैया, बाटे राउर कृपा पार। चाहे रहब देश विदेशवा, छठ हम करब हर बार। चाहे रहब देश विदेशवा, छठ हम करब हर बार। डूबते सूरज के जे पूजे, इहे बाटे हमर बिहार। फलवा दौरवा सजा के ऐनी हम घाट पे तोहार। फलवा दौरवा सजा के ऐनी हम घाट पे तोहार। दिहनिया रग छठी मैया, करी हमरा रति स्वीकार। कबहू ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार। तोहरे भरोसे हम
कबहू ना छूटी छठी मैया हमनी से व्रत त्योहार हमनी से व्रत त्योहार हमनी से व्रत त्योहार। ऋग्वेद में कहते हैं ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। इसके आगे हमें ध्यान देना चाहिए धीमहि धियो तन्नो न प्रचोदयात्। सोचने की बात है कि भगवान आदित्य को, सूर्यनारायण को मरीचि एवं उनकी किरणों को सविता कहते हैं, और इन दोनों के समन्वय को, इन दोनों के संयोग को, इन दोनों की संयुति को गायत्री कहते हैं। ओम गायत्री ही त्रिक्तु जगत्य नुक्तु पंक्त्या सह, ये तीन है जिसे मैंने इसके पूर्व आपको बताया था। ओम भू भुवः और स्वः, इन तीनों की आराधना, इन तीनों की समन्वित आराधना करने का यह पर्व है। यदि हमारे बच्चे, यदि हमारा समाज सूर्यार्घ्य देना सीख ले तो उसे विटामिन डी के कैप्सूल खाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। जैसा कि आने वाले गीत में आप सुनेंगे कि सूप से, देहली से, अन्न से हमारी नाव भारी हो चुकी है। आप ही इसको पार लगा सकती हैं छठ मैया। इस पृथ्वी का जितना भी अन्न है, फल है, सब्जियां हैं, दूषित हो चुकी हैं। उनमें इतना ज़्यादा विष व्याप्त हो चुका है कि उस विष को निर्विष करने के लिए, याद रखें आप, विष की कभी परीक्षा नहीं ली जाती। यदि आप विष की परीक्षा लेंगे तो जीवित ही नहीं बचेंगे। विष की परीक्षा नहीं ली जाती। छठ का पर्व उस विष से निर्विष करने की एक प्रक्रिया है। हम नाना प्रकार के फलों को, गुलगुले, पूरी, नाना प्रकार के मेवे लेकर के जाते हैं और भगवान सूर्य को चढ़ाते हैं कि हे भगवान सूर्य, आप इसे निर्विष करो, आप इसे निर्विष कर हमें पुनः प्रदान करो। जो आपकी अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण यह विषाक्त हो चुका है, आप इसे निर्विष करो। और वह निर्विष हुआ अन्न जब हम अपने बच्चों को देते हैं, उस नूतन अन्न को जब हम अपने परिवार में बांटते हैं, अपने ग्राम में बांटते हैं, अपने देश में बांटते हैं, तो हमारे देश में सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम की संप्राप्ति होती है, जिसे आप आगे के गीत में देखेंगे। आगे का गीत प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष हमारे शिव कुमार जी पुनः आ गए हैं, और हमारी आपसे प्रार्थना है कि नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ हिंदी चैनल की शुरुआत में के इस कार्यक्रम में जो सूर्य षष्ठी के द्वारा हो रही है, इसमें आपने जो अभी तक का कार्यक्रम देखा, सूर्य कुमार जी के गीत को आप सुने और इससे आप इस पर्व के अनुभव को, इस पर्व के महत्व को समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे शिव कुमार जी राजकुमार जी के साथ मंच पर उपस्थित हो गए। से भारी भैले नैया, सुपवा से भारी भैले नैया, तू ही नैया पार लगैया छठी मैया, तू ही नैया पार लगैया छठ मैया, तू ही नैया
नैया पार लगैहा छठी मैया। आके नैया पार लगैया छठी मैया। आके नैया पार लगैया छठी मैया। केतनन के पार कैलो जानेला जहनवा, हमरो पे दया कर मैया जुदीनवा। केतनन के पार कैलो जानेला जहनवा, हमरो पे दया कर मैया जुदीनवा। और तेज भइल जाता माई पूरवैया, और तेज भइल जाता माई पूरवैया। केहू नैया पार लगैहा छठी मैया। केहू नैया पार करैया छठी मैया। केहू नैया पार करैया छठी मैया। कवने कसुरवा निठुर भइलु माई, माई हो के सुनेलु ना केकरा बताई। कवने कसुर माई निठुर भइलु माई, माई हो के सुनेलु ना केकरा बताई। शिव कुमार करे मैया पोखना सहैया, शिव कुमार अर्ज करे पोखना सहैया। आके नैया पार लगैहा छठी मैया। तू ही नैया पार लगैया छठी मैया। तू ही नैया पार लगैया छठी मैया। सुपवा दौरवा से भारी भइले नैया, तू ही नैया पार लगैहा छठी मैया। तू ही नैया पार लगैया छठी मैया। तू ही नैया पार लगैया छठी मैया। तू ही नैया पार लगैया छठी मैया। मैं जानता हूं, इस बात को समझता हूं कि सप्त स्व समाधि, सप्त प्रदीपिका, सप्ते द्व अंग। 7 अश्वों के रथ के सवार अनंग भगवान सूर्य जब पृथ्वी की तरफ आते हैं, जब ब्रह्मांड का चक्र लगाते हैं, जिस आधार पर सप्तपदी की संरचना हुई, जिस आधार पर 7 फेरों की संरचना हुई, और उन्हीं को हिंगुल कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। ऐसे सूर्य भगवान जो कि दाम्पत्य जीवन के मुख्य आधार है, जिसका प्रारंभ छठ पर्व से भगवान वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान श्री राम एवं सीता ने छठ पर्व का प्रारंभ किया था। ऐसी कीर्तन ऋग्वेद के अनुसार यदि आप देखें तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने गायत्री और मैत्रेयी के साथ, भगवान याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी और कात्यायनी के साथ इस व्रत का शुभारंभ किया। यह व्रत आज का नहीं है, अखंड आज्ञाव्रत के अंतर्गत समकालीन पाकिस्तान में
27वीं पीठ के रूप में प्रसिद्ध शक्तिपीठ हिंगलाज। यहाँ का पत्थर हिंगुल के नाम से जाना जाता है, जिसे हम श्रृंगगिरि भी कहते हैं, जिसके द्वारा पारद की प्राप्ति होती है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अब तो हमारी माताएं बहनें अज्ञानतावश चूना के पानी में हल्दी मिलाकर उसे ही सिंदूर मानकर मांग में लगाती हैं, किंतु वो सिंदूर तो नहीं है, वो तो गोली है। जो श्रृंगगिरि से प्राप्त होता है, जो हिंगुल का चूर्ण है, उसे सिंदूर कहते। उसका तात्पर्य ही होता है सह न दूर, जो अपने पति से दूर एक पल को न रखे, उसे सिंदूर। और सिंदूर की प्राप्ति भौगोलिक संरचना के अनुसार सूर्य के द्वारा प्रदत्त भाग हमारे संपूर्ण विश्व में नाना प्रकार के खनिजों के लिए मात्र एक हिंगलाज में ही हिंगुल की प्राप्ति होना, यह अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, आप इसे किंवदंती भी मान सकते हैं कि भगवान सूर्य और सविता का विवाह हिंगलाज में होता है और उनकी पुत्री का नाम सूर्या है, जिसके आधार पर शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत विवाह सूक्त की संरचना की गई, जिसके आधार पर सप्तपदी इत्यादि बनाई गई। इनका सीधा सीधा संबंध छठ पर्व से, और ऐसे सिंदूर के महत्व को, छठ मैया के महत्व को, इस पर्व के महत्व को, दाम्पत्य जीवन के मधुर संकल्पों को लेकर आपके समक्ष पुनश्च उपस्थित हो गई हैं हमारी मम्पी चौधरी जी, जो कि प्राइम टाइम न्यूज, इस न्यूज चैनल की अर्थात नॉर्थ ईस्ट न्यूज चैनल की प्राइम टाइम ऑफिस इंचार्ज हैं। वो आपके समक्ष इस विधा को लेकर एक गीत प्रस्तुत है। जिंदगी सवार देहलो मंगिया सिंदूर डाली, लोगवा सब कहे लगले हम है बड़े भागो वाली। जिंदगी सवार देहलो मंगिया सिंदूर डाली, लोगवा सब कहे लगले हम है बड़े भागो वाली। जिंदगी सवार देहलो मंगिया सिंदूर डाली, लोगवा सब कहे लगले हम है बड़े भागो वाली। लोगवा सब कहे लगले हम है बड़े भागो वाली। कौन धर्म करम से हर तुए संदेहलो, माई बापू के ऋण से उधर कर दिहलो। कौन धर्म करम से हर तुए संदेहलो, माई बापू के ऋण से उधर कर दिहलो। बंधन सा तो जन्म का, बंधन सा तो
जब से तू मिललू हमारी उमरिया बीते परब तोहर करके जन्म व सफल हो गए जब से तू मिललू हमारी उमरिया बीते परब तोहर करके हंसत खेलत जिंदगी बीते दुख ना आवे मैया हंसत खेलत जिंदगी बीते दुख ना आवे मैया दुख ना आवे मैया हे छठी मैया दुख ना आवे मैया हे छठी मैया जिंदगी सवार दिहलो मंगिया सिंदूर डाली लोगवा सब कहे लगले हमें बड़े भाग वाली लोगवा सब कहे लगले हमें बड़े भाग वाली लोगवा सब कहे लगले हमें बड़े भाग वाली। नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ प्राइम टाइम में इतने समय आप लोगों ने देखा कि छठ पूजा के ऊपर एक बढ़िया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में शिव कुमार, राजकुमार, करवी मिश्रा जी, माम्पी चौधरी, निर्मल, बानी जी सब थे। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, लेकिन जो हुआ ये हुआ मिश्रा जी के लिए। इतना बढ़िया कार्यक्रम आप लोगों ने देखा। अपना जो बात आपको कहना है कमेंट में कहिएगा। प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए।